السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھ، آمین۔ کوہاٹ میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کوہاٹ سے خبر ہے جہاں پر دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کوہاٹ میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ کوہاٹ میں مخالفین کی فائرنگ 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کا واقع گنبد کے علاقے ناکبند میں پیش آیا۔ فائرنگ موڑ گانتی گاڑی پر کی گئی جس میں 4 افراد سوار تھے۔ آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کوہاٹ سے جہاں پر دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ سامنے آیا ہے۔ مخالفین نے فائرنگ کی، 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ گنبد کے علاقے ناکبند میں پیش آیا۔ فائرنگ موڑ کاٹتی گاڑی پر کی گئی ہے جس میں 4 افراد سوار تھے۔ آپ کو بتائیں دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ کوہاٹ میں مخالفین کی فائرنگ 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ گنبد کے علاقے ناکبند میں پیش آیا۔ فائرنگ موڑ کاٹتی گاڑی پر کی گئی جس میں 4 افراد سوار تھے۔ آپ کو بتائیں کوہاٹ میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مزید جانیں گے وزیر علی سے۔ جی وزیر علی۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ کوہاٹ کی تحصیل گنبد کے علاقے ناکبند میں پیش آیا ہے، جہاں پر مخالفین نے چلتی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں موقع پر 4 افراد زندگی کی بازی ہار گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو گنبد کے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقہ محدین کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ جی بہت شکریہ وزیر علی۔ شیخ الحدیث مولانا عادل خان کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ میں ادا کی گئی جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مولانا عادل شہید اور ان کے ڈرائیور مقصود کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ فیز 2 ہب ریور روڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا عادل کے بھائی عبید اللہ خالد نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں علماء کرام کے علاوہ جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ، طلباء اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مولانا عادل خان شہید کی نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی وفد کے ہمراہ شرکت کی۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا راشد محمود سومرو، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، مولانا حنیف جلندری، جامعہ بنوریہ مفتی نعمان نعیم اور دیگر علماء نے بھی مولانا عادل خان شہید کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے موقع پر جامعہ فاروقیہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں دہشت گردوں نے گھات لگا کر مولانا عادل خان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود مولانا ڈاکٹر عادل خان اور ان کے ڈرائیور شہید ہو گئے تھے۔ سیاسی، عسکری اور مذہبی رہنماؤں نے مولانا عادل خان کے قتل کی شدید الفاظ میں مثبت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان میں علماء کو قتل کروانے کے بعد شیعہ سنی فرقہ وارانہ تنازع پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت جانتی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے پچھلے چند ماہ میں ایسی کئی کوششوں کو روکا ہے۔ علماء مل کر بھارتی عزائم کو ناکام بنائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی مولانا عادل کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مولانا عادل کا قتل پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے امن خراب کرنے کی کوشش ہے۔ علامہ ازیں، گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی مولانا عادل کے قتل کی مذمت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے پر کراچی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ کورونا کیسز کے 6 ہفتے اوسطاً قومی سطح پر
पॉजिटिविटी 2% से कम रहने के बाद पिछले हफ्ते 2% से ज्यादा रही है। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है, लेकिन कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ने पर शहर के 3 सेक्टर्स के इलाकों को सील कर दिया गया है। कोरोना केसेस बढ़ने पर G10-4 और समा रोड की गलियां 48, 44, 45, 46, 47 और 48 को सील कर दिया गया, जबकि सेक्टर I8 की गली नंबर 25 और 29 भी सील कर दी गई है। इसी तरह सेक्टर G94 की गली नंबर 85 और 89 भी सील कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा गलियों के रिहायशियों को मुनासिब इंतजामात की दरखास्त कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया मुतासरा गलियों में तमाम मुनासिब सहूलियात मुयस्सर करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाए। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद शहर की मुतादिद गलियों को सील करके माइक्रो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासरा गलियों में किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है। मजीद बता रहे हैं G10-4 में मौजूद असलम खोखर। जी असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद का G10-4 का ये सेक्टर है, जिसमें गुज़श्ता रोज़ ज़िला सेहत अफसर ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद मुतअद्दिद जो गलियां थीं उनको सील कर दिया है। यहाँ पे आज जो इस हवाले से इंतजामात कर लिए गए हैं, ब्लॉक्स रख दिए गए हैं यहाँ पर और खारदार तारे भी लगा दी गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर सानिया साहिबा। हम उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कोरोना केसेस बढ़े, उसके बाद आपको ये फैसला करना पड़ा, क्या कहेंगे, कौन कौन सी गलियां जो है वो सील की गई है? जैसे कि आपको पता है कि पहले भी हम ये इनिशिएटिव लेते रहे हैं ICT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया था, जब केसेस बढ़े थे। अब दोबारा चूंकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो कल जो हमारे पास जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से डायरेक्टिव्स आए हैं, उसकी बेसिस पे कुछ जो स्ट्रीट्स हैं G10-4 की, वो हमने सील कर दी हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रीट नंबर 38, 44, 45, 46, 47, 48 और जो समा रोड का एडजेसेंट एरिया है वो हमने सील कर दिया है आज से। तो अब चूंकि ये एप्रीहेंशन है कि सेकंड वेव दोबारा आ रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही एक इनिशिएटिव है कि हम दोबारा जो है जहाँ पे केसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पे दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर सानिया साहबा का ये कहना है कि सेकंड वेव जो है कोरोना की वो शुरू हो चुकी है, तो जहाँ पे केसेस नजर आएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे मुतअद्दिद स्कूल जो हैं उनको भी बंद किया गया, जैसे अभी इस इलाके की जो स्ट्रीट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ I9 की कुछ जो गलियां हैं उनको भी बंद किया गया और I8 की 2 गलियां हैं, वहाँ भी जब कोरोना केसेस सामने आए तो उनको बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की यही पॉलिसी है कि जिस जगह पे कोरोना केसेस होंगे उसको प्रिवेंट किया जाए, ताकि ये जो कोरोना केसेस हैं ये आगे ना बढ़ सके, कोरोना वायरस जो आगे फैल ना सके। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर जोर दिखाने लगी। मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए, 666 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,904 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 28,893 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक 38,57,845 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,18,932 हो गई। अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,03,458 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,131, पंजाब में 1,06,87, खैबर पख्तूनख्वा में 38,329, इस्लामाबाद में 17,296, बलोचिस्तान में 15,520, आजाद कश्मीर में 3,045 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,924 तादाद हो गई। मुल्क भर में मजीद 12 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,570 हो गई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। महंगाई माफिया और गरा फरोशों ने आवाम का जीना दुश्वार बना दिया। किचन का बजट आउट होने से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इंतजामिया की नाअहलियों ने गिरा फरोशों को बेखौफ बना दिया है। धड़ल्ले से लूट मार में मसरूफ दिखाई देते हैं। हाय रे महंगाई, आवाम की जान पर बनाई, कहीं न हुई सुनवाई। मुल्क भर में महंगाई का तूफान है कि बढ़ता ही जा रहा है।
हर शय की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जियों की कीमतें गोश्त के बराबर होने को हैं, फल तो बस गरीब के लिए सिर्फ देखने के लिए रह गए हैं। मसाला जात से लेकर घी, तेल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। दूध, दही समेत डेयरी मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शेरखार बच्चों के वालिदैन सर पीट कर रह गए हैं। एक अंडे की कीमत 15 रुपए तक जा पहुंची है। गिरा फरोश और माफिया भी इंतजामी नाअहलियों का खूब फायदा उठा रहे हैं। वो भी ये सोचकर कि जब तक कोई पूछने वाला नहीं, खूब माल समेट लो और जितना हो सके आवाम की जेबों पर डाका डाल लो। प्राइस कंट्रोल कमेटीज रेट लिस्ट पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती हैं। रेडी वाला हो या दुकानदार, रेट लिस्ट सरेआम आवेजा करना तो दूर की बात, किसी से अचानक रेट लिस्ट तलब कर भी ली जाए तो मौजूद ही नहीं होती। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए खातिर खा इंतजाम किए जाएं और ऐसे इकदाम वज़ा किए जाएं कि आवाम को रिलीफ मुयस्सर हो सके। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सब्जियों के दाम नीचे न आ सके, जिससे शहरियों की क़ुव्वत खरीद शदीद मुतासर हो रही है। शहर में टमाटर 120 से 130 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। मजीद बता रहे हैं जलाल सैदी जो बाटल बाजार में मौजूद है। जी जलाल। जी शहर लाहौर में अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो अपने मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक उसकी फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका। सबसे पहले सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के जो निर्ख हैं सरकारी तौर पर उसके मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका। जो सब्जियों में टमाटर, लीमू, गोभी, बंद गोभी के रेट्स मुकर्रर किए गए हैं उससे 15 से 20 रुपए इजाफी बेचे जा रहे हैं। जबकि जो मॉडल बाजार लगाए गए हैं वहाँ पे भी आवाम खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया गया मॉडल बाजार है वहाँ मौजूद हूँ। शहरी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आप बताइएगा, आपने खरीदारी की है, बाहर की निस्बत क्या कम है? बाहर की निस्बत यहाँ ज़्यादा महंगा है। आप यहाँ पर ज़रा दिखा सकते हैं कि यहाँ मेयारी सब्जी क्या है। हर चीज़ 2 नंबर और रेट इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है और गरीब आदमी तो दिन ब दिन पिसता जा रहा है। और ये कैसी हुकूमत है कि आवाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि आम आदमी तो खुदकशी करने पे मजबूर हो चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ रेट है वो हर चीज़ का डबल रेट किया हुआ है। यहाँ पर बाजार में यहाँ बाहर भी टमाटर 80 रुपये, यहाँ 100 रुपये बिक रहा है। तो गरीब आदमी जाए तो जाए किधर? मेरा यही गुजारिश है कि शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जो आम मार्केट में रेट्स हैं वही जो मॉडल बाजार लगाए गए हैं उनमें भी कीमतें कोई खासा फ़र्क नहीं है। टमाटर का जो सरकारी निर्खनामे पे आज का रेट है वो 100 रुपये है और यहाँ पर भी 100 रुपये में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई रिलीफ आवाम को ख़ास तौर पर नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो भी उसी रेट पर दस्तयाब हैं या मिल रहा। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर अपडेट करने के लिए। पंजाब सिंध की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई का तूफान बरपा है। पेशावर इंतजामिया की जानिब से निर्खनामा जारी तो किया जाता है मगर बेसूद। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में भी जो अशय खुदनोश की चीज़ों के साथ सब्जी की कीमत, फ्रूट की कीमत जो है वो भी बेतहाशा दिन पर दिन उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जो गरीब तबका है वो महंगाई की चक्की में पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त एक सबसे बड़ी सब्जी मंडी पे मौजूद हूँ चूँकि आज इतवार का दिन है और लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हफ्तेवार जो है वो सब्जी यहाँ से खरीदते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे अभी भी लोग जो है वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का जो है एक हजूम यहाँ पे बना हुआ है। सब्जियाँ जो हैं वो खरीदते हैं। चूँकि इतवार है, हफ्ते में एक दफ़ा छुट्टी होती है तो इतवार के दिन यहाँ पे आते हैं और सुबह यहाँ से जो है वो सब्जी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर रेट के हवाले से बताता चलूँ तो रेट भी जो है वो देखने को मिल रहा है, जबकि रेट में भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे पास अभी जो है वो नखनामा भी मौजूद है यहाँ पे। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो सब्जी की कीमतों में 20 से 30% जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। नखनामे के हिसाब से जो है यहाँ पे सब्जियाँ फरोख्त नहीं की जा रही। अगर टमाटर की कीमत के हवाले से बताता चलूँ तो जो ज़िले इंतज़ामिया ने रेट लिस्ट दी है नखनामे के हिसाब से वो 80 रुपये किलो जो है वो फरोख्त है यहाँ पे। और जबकि यहाँ से हमने मालूमात की तो यहाँ पे जो है 100-110 रुपये जो है वो फरोख्त की जा रही है टमाटर। जो तबके के लोग हैं, जो रोज मजदूर तबका है वो महंगाई की चक्की में पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। हुकूमती दावों के बावजूद रावलपिंडी में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। अशिया जमीन पर कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कंट्रोल प्राइस कमेटीज भी फाल न हो सकी।
मजीद बता रहे हैं सुहेल राजा। जी सुहेल। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम रावलपिंडी में सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर हम बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी की पहुँच से दूर हो गई हैं, सब्जी खरीदना भी जो है वो अजाब बन गया क्योंकि कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज जो है वो 80 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह आलू भी 80 से 100 में फ़रोख्त हो रहा है और टमाटर 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। एक शहरी हमारे से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, जी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, आप सब्ज़ी लेने आए हैं, दाल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, एक सब्ज़ी रह गई है, उसकी कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे आप? इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, हर आदमी की पहुंच से दूर है और गरीब आदमी को तो इन्होंने बहुत अच्छी तब्दीली दी है। जो नारे दे रहे थे इमरान खान साहब कि तब्दीली आ रही है, ये तब्दीली आई है कि गरीब आदमी की एक मौत आ रही है। 100 रुपये किलो गाजर है, 100 रुपये किलो आलू है, प्याज है, ऐसे ही तो क्या है, ये कितनी मजदूरी होगी इंसान की। बिल्कुल, आपने सुना, शहरियों का भी यही कहना है कि सब दालों की कीमतें तो बढ़ ही गई हैं। अब सब्ज़ी जो है वो एक चीज़ थी जो बंदा मुनासिब कीमत में ले सकता था, लेकिन अब सब्ज़ी की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आलू, प्याज और जो दूसरी चीज़ें हैं, बाकी जो अशिया हैं, वो उनकी कीमतें भी 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं। सब्ज़ी ख़रीदना भी जो है मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन 500 से 700 रुपये कमाने वाले मजदूर जो हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है सब्जी खरीदने में। जी सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। शहरी इक़्तिदार में भी महंगाई का राज बरकरार है। क्या सब्जियां, क्या फल, हर शय महंगी। आलू 80, प्याज 70, टमाटर 105 रुपए फी किलो, लीमू 120, सेब 200 और अंगूर 220, अनार 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। पहले की सब्जी का क्या रेट था और अब क्या है, कुछ मालूम नहीं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई की लहर में भी इजाफा जारी है। क्या सब्जियां, क्या फल, हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है और आए रोज नए नए जो है रेट सामने आ रहे हैं। अभी अगर बात करें सब्जियों के हवाले से तो प्याज की कीमत इस वक्त 80 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि पहले जो 65-60 तक आराम से मिल जाता था। इसी तरह देखा जाए आलू की कीमत 90 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि पहले जो है 70 तक आराम से मुयसर था। इस तरह अगर देखा जाए टमाटर की कीमत में जरूर कमी देखने में आ रही है कि 2 रोज कबल उसकी कीमत 120-130 तक थी, आज जो है 104 रुपए फी किलो तक है। इस तरह लीमू के वाले से देखा जाए तो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह दीगर जो सब्जियां हैं उसमें गाजर 90 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि पहले 40 से 50 रुपए में दस्तयाब थी। अब इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं उनमें जो है रेट 70 रुपए तक पहुंच चुका है। और बात करें अगर फलों के हवाले से तो फलों में जो सेब की कीमत है 220 तक जा पहुंची है, जो कि पहले देखा जाए तो पहले 160-140 तक जो है मिल जाते थे। इसी तरह दीगर जो अंगूर का रेट देखा जाए वो भी 220 है, 200 तक है और उससे कबल अगर देखा जाए तो 120-110 तक जो है मिलते थे। इसी तरह अनार की कीमत में भी जो है जो इजाफा देखने में आ रहा है, 20 रुपए का इजाफा हुआ कि पहले 100 रुपए में था, आज जो है इस वक्त आज जो 120 रुपए फी किलो में जो है यहाँ पर दस्तयाब है। और यहाँ पर इतवार बाजार है, ये सस्ता बाजार काउंट होता है इस्लामाबाद का, जहां पर शहरी दूर दराज से आते हैं कि जहां पर चीजें सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहां पर ही जो है चीजें उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। रेट लिस्ट पर कीमतें कुछ और होती हैं, बेचने वाले कुछ और कीमत पर बेच रहे हैं। शहरी इस चीज का भी शिकायतें करते नजर आते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है और जो है रेट लिस्ट जरूर दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो है रेट लिस्ट अवेजन तक यहाँ पर नहीं की जा रही। स्लेट के ऊपर लिखे जाते हैं रेट और उसके बाद जो है जो अपनी मर्जी के ऊपर जो है रेट वो पैसे जो है वसूल किए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दीगर मार्केट की निस्बत बचत बाजार में तमाम चीजें मुनासिब दामों पर दस्तयाब हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हुआ हुआ है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज़रूरत की जो अशिया हैं वो जो है आवाम की पहुंच से जो है वो दूर होती जा रही है। मैं इस वक्त बचत बाज़ार में मौजूद हूं और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बाहर दीगर मार्केटों की बनिस्बत बचत बाज़ार में जो है वो कीमतें नॉर्मल हैं। शहरी जो है यहाँ पे बआसानी जो है चीज़ें ख़रीदें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ दिखाया कि बचत बाजार में रेट लिस्ट भी यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें आलू जो है वो 45 है। अच्छा, आलू की मुख्तलिफ इकसाम है, जो इसमें 45 भी है, 35 रुपये भी है, 65 रुपये भी है, जबकि प्याज जो है 68 रुपये है और अपना जिस तरह फूल गोभी हो गई 55 और बंद गोभी हो गई 80 रुपये। तो इसी तरह दीगर चीज़ें जो रेट लिस्ट पे जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं जो सब्जी फरोश हैं वो इस रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक सब्जी फरोश भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या फ़र्क है बचत बाज़ारों में कीमतों का और बाहर। आप
بازاروں میں باہر چلے جائے مارکیٹوں پہ تو 180-200 روپے ٹماٹر بک رہے ہیں. یہاں پر بچت بازار کے اندر ریٹ ہے 152 روپے 150 روپے فروخت کیا جاتا ہے اور تقریباً ہر سبزی کے اندر تقریباً 20 روپے 30 روپے کے مارجن میں فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے لوگ بچت بازار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ خریداری کرتے ہیں. باہر سبزیاں مہنگی ہوتی ہے, بچت بازار میں قیمت کم ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر. اچھا بالکل, یہاں پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بچت بازار ہیں بچت بازار میں جو ہے وہ قیمتیں جو ہے نارمل ہوتی ہیں اور ریٹ لسٹ بھی ہر ہفتے جو ہے ان کو مہیا کی جاتی ہیں. منافع خوروں کو لگام دینی چاہیے تاکہ چیزیں بچت بازار کے علاوہ بھی سستی میسر ہو سکیں. جی بہت شکریہ عطا حسین. ملتان اور گردنواں کی منڈیوں میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیز کی فعالیت نہ ہونے کے سبب دکانداروں کی جانب سے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں. سبزیوں اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے جبکہ آٹا اور چینی بھی نایاب ہو چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں احمد کاشف. ملتان اور گرد و نواح کی منڈیوں میں مہنگائی کے ڈیرے برقرار ہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں. سبزیوں اور اشیاء خورد و نوش کی ہوش ربا قیمتیں عام انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. آٹے کی قیمتوں میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. سبزی کی دکان ہے, گروسری کی دکان ہے, وہاں پر زیادہ ہے مہنگائی, کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. خود ساختہ لوگوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے اور جس پہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ بالکل غیر فعال ہیں, وہ کوئی اتنا افیکٹولی کام نہیں کر رہی. آلو, ٹماٹر, شملہ مرچ, گوبھی اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کی جیب پر وہ بوجھ ہے کہ جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا. دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا ہی نایاب ہیں. عام آدمی تمام روز شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز ہی کیوں نہ چھان مارے, اسے چینی اور آٹا دستیاب ہی نہیں ہوتا. عوام کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے بارے میں حکومت سنجیدہ اقدامات کرے. احمد کاشف, سچ ٹی وی, ملتان. جہاں ایک طرف مہنگائی کا طوفان برپا ہے, وہیں گجرانوالہ میں چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے سستا بازاروں کا رخ کر لیا ہے. مزید جانے کے زنیر نور سے. جی سنیں. جی بالکل, میں اس ٹائم گجرانوالہ کے سستا بازار پیپلز کالونی میں موجود ہوں. آج چھٹی کا روز ہے تو اتوار کے روز شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ سستی اشیاء خریدنے کے لیے سستا بازار میں پہنچ چکی ہے. یہاں پر اوپن مارکیٹ کی نسبت یہاں پر کافی چیزوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے تو سبز مرچوں کی, یہاں پر جو سبز مرچیں ہیں یہاں پر 140 روپے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہاں پر جو اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح ٹماٹر کی بات کی جائے تو یہ جو ٹماٹر یہاں پر 140 روپے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں 200 کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو سب سے مہنگی آئٹم ہے جو مسالہ جات میں ادرک ہے, یہاں پر 450 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں, جبکہ یہاں اس کی قیمت جو ہے 600 روپے کلو کے حساب سے ہے. اسی طرح جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں جن میں گوشت ہے, جو کریانے کا سامان ہے یا فروٹس ہیں, یہاں پر سستا بازار میں کافی سستی مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہری بھی بہت زیادہ خوش ہے. شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں اس طرح کے جو سستا بازار ہیں وہ جگہ جگہ قائم کرنے چاہیے تاکہ غریب عوام کو مزید ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ زنیر. پورے ملک کی طرح اوکاڑا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہے. اشیاء خورنوش کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ سے عوام بلبلا اٹھی ہے. تاجر برادری نے بھی خود ساختہ مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں شاہد کھوکھر سے. جی شاہد. جی بالکل, اس وقت میں اوکاڑا میں موجود ہوں اور پورے ملک کی طرح اوکاڑا میں بھی مہنگائی کا جن ہے جو بے قابو ہو چکا ہے. یہاں پر اشیاء خورد و نوش میں اس کا قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ عوام جو ہے وہ بلبلا اٹھی ہے. اس حوالے سے جو مسئلہ ہمیں مین نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ بڑھائے گئے ہیں, دوسرا یہ ہمیں تاجروں کی طرف سے خود ساختہ مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے یہ جو ہمارے ساتھ عوام موجود ہے, مزید جو ہے ہم ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا. بھائی کچھ تاجروں کی طرف سے خود ساختہ مہنگائی ہے, کچھ جو مہنگائی کے مافیا ہیں, گندم, چینی, وہ سارے منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ سارے ان کو ملک کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی ملک کا خیال نہیں ہے. ہاں جی, جیسا کہ آپ نے خریدار کی بات سنی, ہم اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیزوں میں جو اتنا زیادہ فرق ہے 30 سے 40 روپے کا ہر چیز میں فرق ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی جی بھائی جان, جو چیزوں کا فرق ہے نا, اے پلس جو کوالٹی ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اے پلس جو کوالٹی ہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. جو حکومت کا ریٹ ہے وہ اس کا بی گریڈ ہے, وہ اس ریٹ ہے. جو ہمارے ریٹ ہے اے پلس ہیں, ان کا 20 کا فرق اس لیے ہے کہ وہ کوالٹی وجہ اچھی ہوتی ہے. اے پلس کا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے پاس 2 گریڈ میں چیزیں ہیں, ایک تو اے پلس ہے, ایک بی پلس ہے. جو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ ہم بی پلس بیچتے ہیں اور جو اے پلس چیزیں ہیں وہ ہمیں مہنگی ملتی ہیں, اس لیے ہم انہیں مہنگے ریٹ پر فروخت کرتے ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ شاہد کھوکھر.
कराची में सूरज के तेवर बिगड़ गए। आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में आइंदा 5 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई की गई, जबकि महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी होने वाले दरमियाने दर्जे के हीट वेव अलर्ट में कहा गया कि आज शहर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा 5 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हीट वेव के सबब शहर में समुद्री हवाएं मुतासिर रहेंगी। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के अजाब के साथ साथ अब गैस की लोड शेडिंग से भी शदीद परेशान हो गए हैं। अता हुसैन की रिपोर्ट। कराची के बासी एक मसले से निकलते नहीं तो दूसरे मसाइल में घिर जाते हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सारिफीन को अजियत में मुब्तला कर दिया है। कोरंगी के मकीन गुज़िश्ता 5 माह से गैस की लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं खा सकते। सुबह सुबह चाय न पानी न रोटी पकते हमारे, बहुत मुसीबत हो। बड़ी मुश्किल है। बच्चे मजदूरी पे जाते हैं, बिना खाए पिए जाते हैं बेचारे। दोपहर को आओ, शाम को न खाना बनता है न चाय बनती है। सबको बोला है, बहुत बोला है, इनको गैस वालों को कोई देखता ही नहीं। खातून खाना कहती हैं कि दोपहर और सुबह के वक्त अगर गैस दस्तयाब हो भी तो प्रेशर इतना कम कि खाना बनाना दोबर हो जाता है। खाना बनाते सुबह देखो स्कूल पल्ले लगा करके स्कूल खोले, सुबह हम चाय बनाने के लौटते थे, माची जलाते, गैस ही नहीं आती है। परेशान हम तो गरीब आदमी, हम बाजार का तो नहीं खिला सकते हैं ना। गैस गायब हो जाने की वजह से खवातीन के लिए बच्चों को स्कूल, मर्दों को काम पर भेजने समेत अमूर खानादारी की अंजामदेही में मुश्किल पेश आ रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि के इलेक्ट्रिक के साथ साथ सुई गैस इंतजामिया को भी लगाम दी जाए और इन्हें परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। लाहौर में मौसम सरमा की आमद से कबल ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस नापैद हो गई। गैस की अदम दस्तियाबी पर शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, सर्दियाँ आने से कबल ही लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैस की फराहमी है वो मुनक़ता होना शुरू हो गई है और अब से हम देख रहे हैं कि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो गैस की फराहमी से महरूम है और जहां शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, वाल्टन का ये इलाका है, जो कॉलोनी है, इसके रहायशी जो है वो सरापा एहतजाज हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो गैस है वो नहीं आती। यहाँ पे सरापा एहतजाज खवातीन मर्द हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। स्कूल भी खुल गए हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो गैस आती है? बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। गैस आने बच्चे ने खाना कितना बना के देंगे? गैस बिल्कुल ना दोपहर को है, ना शाम को है, ना रात को, गैस आता ही नहीं गा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि शहरी किस तरह शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं, कोई शेड्यूल है, कोई टाइम टेबल है या जब दिल करता है गैस? भाई कभी कभार दोपहर को आता नहीं, शाम सुबह तो आता ही नहीं है गैस, बिल्कुल भी नहीं आता। और बिल हर घर का 2-3 हज़ार रुपये कम आता ही नहीं है। और ये बच्चे अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जाते हैं होटलों में लाते हैं मजबूरी में और वो उनको खाना देते हैं, फिर बच्चों को भेजते हैं। हमने सुना कि शहरी जो है वो हुकूमत से शदीद नाला नज़र आते हैं और कहते हैं कि खुदारा हुकूमत जो है वो इनकी इस परेशानी को दूर करे और इस इलाके में खासतौर पे लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे गैस की फराहमी जो है उसको बहाल किया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंजेस मजहब कार्ड का इस्तेमाल, मदरसे के बच्चों के डंडा बर्दाश्त जुलूस और मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिश है। उनका कहना था कि इस तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा और तहरीक का पुरतशद्दुद होना बड़ी कयास नहीं। कोई भी संजीदा तज्जिया निगार इस तहरीक को इंतशार का इस्तिआरा ही समझेगा। कराची पुलिस शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज करने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहर में लुटेरे आजाद, आवाम दिन रात लुटने लगे। साइट के इलाके से शहरी को गन पॉइंट पर डाकू लूट मार करके फरार हो गए। आपको बताएं, गुज़श्ता रोज न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान की शहरी से लूटमार की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह शहरी को मुलजिमान की चलती मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिराया गया। शहरी के गिरते ही मुलजिमान के मजीद 2 साथी आ गए। चारों मुलजिमान शहरी से बैंक निकलवाई हुई 2.5 लाख की रकम, मोबाइल फोन और दीगर अशिया छीन कर फरार हो गए।
न्यू कराची सेक्टर 5 में वाक़ मोमिन मस्जिद और इससे मुल्हिका सरकारी स्कूल के अतराफ में सीवरेज का पानी जमा हो गया। गंदे पानी के जमा रहने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ये मनाजिर किसी गांव या देहात या किसी पसमानदा इलाके के नहीं बल्कि मुल्क के मुआशी हब कराची के इलाके सेक्टर 5 के हैं। गंदा पानी सरकारी स्कूल और मोमिन मस्जिद के अतराफ में जमा है, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ नमाजियों के लिए शदीद परेशानी का बायस बना है। इलाका मकीनों के मुताबिक गंदे पानी और कीचड़ जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। अमलूक जायका भी फायदा भी। टमाटर जैसे दिखने वाले मिठास से भरपूर जापानी फल की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। फलों की सरजमीन वादी सवात के बागात अमरूद के पल से भर गए। न पानी की जरूरत और न ही खाद, मगर जायका ऐसा कि हर कोई खाने को तरसे। प्रोटीन से भरपूर इस फल को जापानी फल भी कहा जाता है, जिसके बागात सवात में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अमरूद मौसम सरमा का एक जायकादार फल है, जिसे मुकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी बहुत पसंद करते हैं। ये सर्दी मौसम का बहुत उम्दा और लजीज फल है। इसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। इधर लोग जो है ना विजिट करते हैं तो इधर बाग में भी खाते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। अमरूद का सीजन सितंबर से शुरू होकर नवंबर दिसंबर तक जारी रहता है। इस फल को एक मखसूस कार्टन में पैक करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई किया जाता है। ये फल पके हुए गोल टमाटर से मिलता जुलता है, जो खुश रंग और खुश जायका भी है। स्वाद की आबो हवा अमरूद की पैदावार के लिए इंतहाई मौजून है। हम कराची से आए और जापानी फल के लिए इसे कहते भी और कराची ले जाइए भी। अमरूद एक नायाब और चंद ही ममालिक में पैदा होने वाला फल है, जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। अमरूद और दीगर फलों की पैदावार में मजीद इजाफे के लिए किसानों की खुसूसी तरबियत और इससे जुड़े दीगर सहूलियात की फराहमी से फलों की पैदावार में मजीद इजाफा होगा। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जी हां, मगर आप देखिए थाईलैंड की बतखें, जिन्हें खेत में कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए छोड़ा गया। 10,000 बतखों ने देखते ही देखते कीड़े मकोड़ों का सफाया कर दिया।